वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अफ़ान है और मैं एडिटर इन चीफ़ ऑफ़ आईवी टुडे हूँ। कुछ टाइम पहले मेरी और मेरी टीम को दावत आई थी बैतुस्सलाम लिंक रोड से, तो हमने उस पूरे इंस्टीट्यूट का टूर किया और इस टूर के नतीजे में हमने एक व्लॉग बनाया है जो आपके लिए प्रिपेयर किया है। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। हम आ गए हैं बैतुस्सलाम और लिंक रोड पे और अभी हम जा रहे हैं एजुकेशनल सेंटर्स की तरफ। तो देखिए हम यहाँ से जा रहे हैं और देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। Right, so we have another student with us. So let's start talking with him. Okay, what's your name? My name is Mikhail. Okay, Mikhail, where are you from? I am from UK, London. Okay. Muhammad Aryan. Mohammad Zayan, where are you from? I am from Ilford in London, Oh, but really my nation is Punjabi. okay. My name is Qasim Khan and I'm from New York, USA. Okay. So Ryan, let's talk about how did you come here? How did your parents decide to join Baitulsalam? I feel okay. In the start, I feel little scared. Then my dad always teach me that you come for ifs, so don't take any pressurizement and go ifs easily. Okay, that's great to hear. So let's talk about the environment at Baitulsalam. How do you feel the environment is here? It's okay. At the first, I used to think that people are a little slendering, but at the middle, I get used to it. Acha. Let's start, Qasim, why did you join Baitulsalam? Because I used to do his with the Qari from South Africa, but my parents felt that me and my brother weren't doing his properly. We weren't memorizing properly. So then my parents made a plan to come to here and join Beit Salam. All right. So how do you feel? What's the environment here? How do you feel? Teachers किस तरह treat करते हैं? How do you feel that? The teachers treat me like a normal student, but the students, they don't treat me like a normal student. They always refer to me as Qasim Khan or the American or American, as they usually call me. And they always try to speak English with me, and sometimes it gets really, really, really annoying that I just keep walking away from them. Acha. So how do you feel about the teachers here? The teachers here, how do they treat you? Because there's a myth around, that students at madrasas are not treated well. So what do you feel about that? Is that only a myth or is that real? Some teachers are very kind, like my teacher, he's very kind, but some over here, they are kind of hard on kids. I'd say it's just a myth. Before I used to think that they do not treat well, but at the final, I get understand that they're doing it just for our benefits. अच्छा, that's great to hear. राइट, तो अभी हमारे साथ एक बच्चा है, इसके अंदर हम तलावत सुनेंगे इसकी। तो अपना नाम बताना और आपके वालिद साहब क्या करते हैं और आपने हिफ्ज़ कितने साल में किया है और आपकी एज क्या है? मेरा नाम अज़म तारिक है और मेरा वालिद साहब स्कूल चलाते और मैं एक लहजे में कुरान सुनाता हूँ मंजिल के। अच्छा, ये बताओ कितने साल के हो आप? 13 साल का। अच्छा, 13 साल के हो। आपको कितने एक्सेंट्स आते हैं कुरान के? लहजे कितने आते हैं? 15। अच्छा, अब मुझे बताओ आप कितने लहजों में हमें सुनाओगे? अच्छा, मुझे 2-3 लहजा सुनाना। अच्छा, दो आयत पढ़ना और फिर उसके 2-3 लहजे पढ़ना, ठीक है? बस बताते रहना कि कौन से लहजे में पढ़ रहे हो। पढ़ूं? हाँ, पढ़ो। الشيخ محمد أيوب مقام حجاز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वजाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ जिहादिह हुवज्तबाकुम वमा जअल अलैकुम फिद्दीन मिन हरज मिल्लत अबीकुम इब्राहीम हुव सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्ल वफ़ी हाज़ा लियकून अर्रसूलु शहीदन अलैकुम वतकूनू शुहदाअ अलन्नास فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. الشيخ مشاري بن راشد العفاسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. बड़ा माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा पढ़ा है. ठीक है, अभी हम कुरानी कैंपस से वापस आए हैं और अभी हम जाएंगे OA लेवल कैंपस की तरफ. तो चले चलते देखते क्या होता है वहाँ. तो अभी हम OA लेवल इंस्टीट्यूट में हैं यहाँ बैतुलसलाम के. तो हम यहाँ देख रहे क्लासरूम्स को. तो क्लासरूम्स में हम देख रहे देखिए ये O लेवल सेक्शन A है. यहाँ बच्चे मेरे ख्याल से इनकी क्लास ख़त्म हुई है तो ये बाहर आए हुए. तो इन क्लासरूम्स आप देख सकते हैं बच्चे खेल रहे हैं. ये भी एक माहौल होता है. अच्छा, इनके क्लास वर्क भी बाहर लिखे हुए नोटिस बोर्ड पे राइट टू राइट. तो ये लोग लिख भी रहे. अच्छा, जो टॉप होते हैं मेरे ख्याल से नोटिस बोर्ड पे भी लगाए जाते हैं. तो ये है क्लासरूम्स. यहाँ आप देख सकते हैं प्री सेक्शन लाइब्रेरी, इंग्लिश सेक्शन की लाइब्रेरी भी है. और आगे जाते हैं हम. ये 4th फ्लोर पे है. हम लिफ्ट से आए. उम्मीद है बच्चे सीढ़ियों से आते रहते हैं और उनकी वर्जिश भी होती रहती है. देख रहे हैं ये फ़िज़िक्स लैब आप देख सकते हैं. यहाँ बिल्कुल स्ट्रेट आप देख सकते हैं फ़िज़िक्स लैब नज़र आ रही है यहाँ. और उसके ही बराबर में हम देख सकते हैं दूसरी लैब्स का भी बनी हुई है. ये लैब में जाकर देखते हैं क्या है. ये केमिस्ट्री लैब है जो आप देख रहे हैं अब. केमिस्ट्री और बायो लैब.
फिर उसके बाद आगे चलते हैं, हमें वर्चुअल क्लासरूम्स नज़र आ रहे हैं कि वर्चुअली जब कोविड के दौरान ऐसा वर्चुअल हो गया तो यहाँ वर्चुअल क्लासरूम हैं जो बने हुए हैं यहाँ, जो दुनिया भर में यहाँ से हम बात कर सकते हैं, राब्ते रख सकते हैं और पढ़ा सकते हैं। देख रहे हैं बिल्कुल जदीद टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है ये वर्चुअल क्लासरूम। और ये बैतुस्सलाम लिंक रोड पे है। प्रोजेक्टर की तरफ आप देख सकते हैं, प्रोजेक्टर है और यहाँ से उस्ताद बैठ के कंप्यूटर को कंट्रोल करके पढ़ा भी सकता है दुनिया भर में। ठीक है, अभी हम बैतुस्सलाम में हैं, हमारे पास एक OA लेवल स्टूडेंट है, तो इससे पहले सब नाम पूछते हैं और ये कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ़ है, मैं डिफेंस से आया हूँ, मेरे अब्बू यहीं पढ़ाते हैं, यहाँ भी रहता हूँ, लेकिन जमेरात जुम्मे को डिफेंस में जाता हूँ, वहाँ भी हमारा घर है फेज़ 7 में। ठीक है। जब आपको याद आ जाए कि आपको तो इंटरव्यू इंग्लिश में लेना था। वापस करो, कट करो। अच्छा, so we are here at Batussalam with one of our student at OA levels. So let's ask him some questions. So let's introduce yourself. So where are you from and who are you? My name is Mohammad Yusuf. I am from defense. My name is Mohammad Arsham Ali Mawi and I am from Karachi. My name is Abdullah and my father name is Hafizullah. I live in Ahsanabad, Gulshan Memar. There are many good resources for students better than last madrasa, and when there was my first day, teacher cared for me too much, and the students also they helped me to introduce that what is here, what we have to do and other things. First, I was in intellect school and such thing that I am here from many years. So when I was here, when I was coming, so I was very small. I thought that there will be Jamia and many things will be Islamic and everything will be our own. But I was very small, so I do not remember my impressions completely. So. Acha, there is a myth around madrasas, institutions, ke teachers are strict and they don't treat students well. What do you think? Is it true or is it false? I don't know about other madrasas, but in Jamia Batussalam I think it is false, because teacher cares us for very much and no teacher is I think strict. Acha. It's absolutely wrong. It's not like this. Teachers are very good and we are very well treated. Everything is fine here. The teachers give everything treatment very well. I think in my view in teachers teaching me, absolutely nobody is strict. Every teacher is very good, not strict. They are relaxed. Acha, tell me about the extracurricular activities that you do at Batussalam. All are our study days, but on Monday, that is our activity day, we go to computer lab as well, we play Scrabble as well, there is spelling bee competition and we watch videos. Acha. It's a must. He has to choose one. It is must to, because he has to spend his time and learn something new. So it is must to for every student to choose any one of the activities. Acha, there is also there is only यहाँ सिर्फ religion education होती है, religious education. Is it false कि सिर्फ religious education होती है, or is it it's everything is being taught here? It's false. Here is contemporary education as well, O level as well, A level as well, and you can become alim as well. Everything is possible. Tell me, you're studying O levels right now. Tell me what are the subjects that you're studying right now? I'm studying mathematics, physics, chemistry, biology, English language, and geography, environment of Pakistan, and history of Pakistan. Okay. So what do you feel how do you plan to serve the society after you graduated from Batussalam? My plan is to teach hereafter and work for Batussalam and this society after I am graduated. Inshallah, when I will become alim, so first I will take contemporary education, then I will become alim, so I can spread the deen to the people who don't know Arabic or other languages. Here they teach us Arabic, Urdu and English as well, so we can tell to anybody whether he is Arabic, Urdu or English. Mashallah, mashallah. Acha, I have one more question from you. Tell me, what do you feel, how does contemporary education, matlab the physics, chemistry, math that you're studying will help you in connecting with religious education? It will help me in the way like
I will like debates, and I will write books of I will write books in English language about Islam to convince the people to embrace Islam. अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है, माशाल्लाह। ठीक है, तो अभी हम तमाम बैतुस्सलाम स्टूडेंट के साथ है, तो ये अभी कुछ नज़म रिसाइट करेंगे, तो आपको उम्मीद है अच्छी लगी। I was so far from you, yet to me you were always so close. I wandered lost in the dark. I closed my eyes to all the sun you put in my way. I walk every day further and further away from you. Oh Allah, you brought me home. I thank you with every breath I take. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. अभी हम बैतुस्सलाम आए हुए, तो बैतुस्सलाम लिंक रोड, तो ये इनका इंस्टीट्यूट है जहाँ OA लेवल्स और कुरान हिफ्ज़ और आलम दीन की तालीम दी जाती है। तो इस इंस्टीट्यूट के अभी मैं OA लेवल इंस्टीट्यूट के बिल्डिंग में मौजूद हूँ। इस बिल्डिंग में ये सेंटर है, ये रूम है, जिस रूम में दफ्तर बनाया गया है बेसिक एजुकेशन सेंटर्स का और ख़ास तौर पे मैगज़ीन प्रिंटिंग का। अब आप ख़ुद देख सकते हैं कि मैं IB टुडे का बानी होकर मैंने 3 साल में एक मामूली सा मेरे नज़र में एक न्यूज़लेटर बनाया, मगर यहाँ एक पूरा एक दफ्तर बनाया हुआ है। और यहाँ बिल्कुल बाकायदा ये मेरे पास कुछ इनके मैगज़ीन है, ये इंग्लिश है, ये उर्दू है और एक अरबिक वाला है जो अभी यहाँ मौजूद नहीं है, मगर 3 मैगज़ीन यहाँ से आते हैं और पूरी दुनिया भर से लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं और पढ़ा जाता है, देखा जाता है। तो इससे बस हमें एक सीखने का अमल मिलता है कि यार देखिए हमें कितना आगे जाना है। अगर मैं IB टुडे की पर्सपेक्टिव से सोचूं तो देखता हूं कि यार कितना आगे हम जा सकते हैं और कितनी पॉसिबिलिटीज़ है कि कहाँ हम इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई डेडिकेटेड ऑफिस तो है नहीं। तो इस तरह हमें समझ आता है कि कहाँ ये वैल्यू दी जानी चाहिए इन कंटेंट क्रिएशन को, कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम अपना कंटेंट प्रमोट करेंगे तो बाहर रहना लोग एक इमेज बनेगी, एक पॉजिटिव इमेज भी बनेगी। लिहाजा इस पर हमें फ़ोकस करना चाहिए और यही मेरा यहाँ इस विज़िट का पर्पस था। जब इन्होंने मुझे इनवाइट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी विज़िट हुई है और मेरे ख्याल से इससे मुस्बत हम इम्प्लीमेंट लेकर आएंगे अपने काम में भी। तो अभी हम बेसिक एजुकेशन सेंटर पे हैं जहाँ बैतुस्सलाम के दीगर एजुकेशन सेंटर्स बने हुए हैं मुल्क भर में, तो उसकी सारी फाइल्स हमारे पास अब मौजूद है। तो इस पर डिटेल्स मालूम करते हैं कि ये है क्या और इसकी क्या क्या चीज़ें हैं। ये बैतुस्सलाम बेसिक एजुकेशन सेंटर्स हैं। इनमें जो है बैतुस्सलाम की तरफ से गांव देहातों में, पसमानदा इलाकों में, बिल्कुल दूर दराज में, जहाँ पे ना दुनियावी तालीम होती है और ना ही दीनी तालीम होती है, बच्चे बेचारे कलमा तक भी नहीं जानते, बच्चे क्या बड़े भी इन जगहों पे कलमे से नावाकिफ़ हैं, बुनियादी दीनी और दुनियावी तालीम से नावाकिफ़ हैं। इन जगहों पे बैतुस्सलाम ने अच्छे असातिज़ा का, अच्छे मुअल्लिमीन का इंतखाब करके वहाँ पर तकर्रुर किया और वहाँ पर जो है तालीम को शुरू कर दिया, जिसके अंदर जो है बैतुस्सलाम दीनी और दुनियावी दोनों तालीमों को लेकर चलता है। वहाँ पे बच्चों को दीनी तालीम और दुनियावी तालीम से आरास्ता किया जाता है और इन्हीं सेंटर्स के अंदर फिर बैतुस्सलाम इन्हीं सेंटर्स को बुनियाद बनाकर फलाही काम भी कर रहा होता है, जिसके अंदर जो है कपड़ों की तकसीम है, जैकेटों की तकसीम है, कंबलों की तकसीम है, कुएँ खुदवाना है, मसाजिद की तामीर है, वगैरह वगैरह। तो ये सारे काम भी जो है इन्हीं बेसिक एजुकेशन सेंटर को बुनियाद बना के बैतुस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह करता है। इन इलाकों में काम करना, खोलना तो मुश्किल है, लेकिन उसके बाद इनको चलाना और ही ज़्यादा मुश्किल काम है। इन देहात के इलाकों में काम करना और इनको संभालना, इनका इंतज़ामी हवाले से इनको लेके चलना और ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बैतुस्सलाम ने इसके लिए एप्लीकेशन को शुरू किया है, एप्लीकेशन बनाई है, जिसके ज़रिए से बच्चों के तालीमी रिकॉर्ड को भी कंट्रोल किया जाता है, इनके इंतज़ामी रिकॉर्ड को भी कंट्रोल किया जाता है और GPS की मदद से हर चीज़ की अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल निगरानी की जाती है। और ये पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह 380 बेसिक एजुकेशन सेंटर्स कायम हो चुके हैं और इंशाल्लाह ये तादाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी और इंशाल्लाह 10,000 कुरानी मराकज़ ये बेसिक एजुकेशन सेंटर्स कायम करने का इरादा है। और फ़िलहाल जो है वो 380 हैं और चारों सूबों में कायम है, सूबे सिंध में, सूबा बलूचिस्तान में, सूबा पंजाब में और सूबा खैबर पख्तूनख्वा में। चारों सूबों में अल्हम्दुलिल्लाह ये काम है और चित्राल के दूर दराज इलाकों में वहाँ पे भी काम है और सहराओं के अंदर उमरकोट की तरफ, थर के रेगिस्तानों में, वहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहा है।
अभी हम बैतुलसलाम में है, बैतुलसलाम इंस्टीट्यूट पे। तो यहाँ अभी हमने देखा है हॉस्टल का, आपने कुछ देखी है कुछ तस्वीर आपने हॉस्टल में जहाँ हमने नाश्ता किया, और यहीं से यहाँ हॉस्टल भी है बच्चों के लिए, और फिर उसके बाद टीचर्स के लिए अलग हॉस्टल है, उनकी अलग रहाइश का है। तो और फिर यहाँ पीछे मस्जिद भी है। तो इसी तरह यहाँ पूरा सिस्टम बाय पर्पस बिल्ड कैंपस बना गया है। अच्छा, यहाँ आकर मुझे ऐसा फील हुआ, पहले मैं सोचता था रिलीजियस एजुकेशन एक साइड पे है, कंटेम्प्रेरी एजुकेशन एक साइड पे, मगर यहाँ आकर फील हुआ कि यहाँ कंटेम्प्रेरी और वो और रिलीजियस एजुकेशन साथ मिलके भी पढ़ाई जा सकती है, और यही हमारी रवायत रही है पिछले सेंचुरीज़ में। तो यही हमारी रवायत है, इससे हमें सीखने को काफ़ी कुछ मिला मुझे कि यार दोनों चीज़ें एक साथ पढ़ाई जा सकती है, और ये भी पॉसिबल है। तो इन्होंने करके दिखाया, इंशाल्लाह आगे भी देखते हैं कि दूसरे इंस्टीट्यूट ये अगर फॉलो करते हैं या नहीं करते। थैंक यू।